Yes. सर मीट की स्क्रीन शो हो रही है। Sorry. गूगल मीट की स्क्रीन शो हो रही है। गूगल मीट की, आई मीन, यस, मैंने वैसे अपना पूरा कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दी, इस वक्त गूगल मीट ही खुला हुआ है. सो यस सर, विजिबल है. ओके, ग्रेट. सो should we start now? यस सर. Okay. So just to recap, last time we were discussing finite state machines, and just to recap finite state machines, what are these? They basically have a couple of things. One, alphabet, and then it has some set of states, and then it has an initial state, and then we have set of final states. Let me call it as F. That's a subset of Q. And then we have a transition function that actually takes something from the states, let's say Qi, and something from the alphabet, let's say 0 or 1, or let's say X, and it maps to some Qj. Okay, so that's our deterministic. I have not. I shouldn't be using the term deterministic, because I've not told you what do we mean by non-deterministic and stuff like so. But this is the finite state machine. This is the description of finite state machine, and the initial state must be required. Final state can be more than one, and one comment here is the final state set may be empty. There may not be any final state. That is also possible. In that case, whatever finite state machine you will come up with, it will accept no string. Okay? It is possible to come up with machines that accept nothing. Okay, so far so good? Yes? Yes, sir. And I guess last time we did an example of what machine we even number of zeros. Last time we drew a machine that accepts even number of zeros. But okay, let's draw another machine today. Another example. Example is let me take an example from so, and come up with an FSM that accepts any string that contain at least one and it ends with 2 zeros. So कोई भी स्ट्रिंग जिसके जो एंड होगी 2 जीरोस पे और उस स्ट्रिंग में कम से कम एक 1 आएगा, वो मशीन हमने बनानी है. मिसाल के तौर पे ये मैं एक W1 लिखता हूं आपके सामने, 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0. सो ये हमारी मशीन इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं?
करेगी. Yes. The reason is this string ends with 2 zeros. And the string contain at least 1 1. Now, 0 1 0 0 0. Will our machine accept this string? No, sir. No, sir. Why not? Sir, 2 zeros पे रिटर्न नहीं हो रही इसकी. 3 zeros है. करेगी. लास्ट पे 2 zeros हैं. एक्सेप्ट करेगी सर. Doesn't matter with So both answers are right. जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करेगी वो शायद ये देख रहे हैं कि एंड पे एग्जैक्टली 2 zeros होने चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये जो डिस्क्रिप्शन है ends with at least कर लें आप, at least ends with at least 2 zeros. So end पे कम से कम 2 zeros होने चाहिए. So अगर हम ये लगा लें तो then this will accept. Okay? Yes, sir. Okay. 2 3 0 1 0. Will this be accepted? no. No, sir. No. No, sir. Okay, so how to draw? Let's draw this machine. So, can you help me? What should we do? Let's start by considering only 2 states. Let's start. Maybe we then can add multiple states. Let's start by considering only 2 states. Let's say Q1 and Q2. Okay. Let's say Q1 is our initial state. Remember, our alphabet is always binary, 0 and 1. If I change the alphabet, I will tell it explicitly. Otherwise, it is always 0 and 1. Okay. And let's say, just for the sake of starting point, let's say we think that Q2 is a final state. Let's say maybe we have to add another state, and maybe we have to add more states, and maybe we have to add more final states. But let's start with this. So what should we do? Any idea? If you think we should add another state, let's draw another state here, Q3. And if Q3 is not required, we will cut it off. But let's say, any idea? What should we do? Q1 से Q2 पे जाएंगे जब 1 होगा. लेकिन वो फिर 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर कोई 0 भी नहीं आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी अगर मैं 1 को इस पे लेके जाता हूं. हालांकि ये स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट होनी चाहिए, I mean ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए because it is not ending with at least 2 zeros. It has a 1 but it is not ending with at least 2 zeros. सर अगर 0 आएगा तो वो Q1 पे रहेगा, और अगर 1 आए तो Q3 पे चले जाए. Sorry? अगर 0 आए ना तो वो Q1 पे रहे, और अगर 1 आ जाए तो वो Q3 पे चले जाए, और आगे फिर हम 0 को चेक कर लेंगे. या फिर 1 वाली तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना. चलें, let's start doing this. आप ये कह रहे हैं कि 0 आए तो Q1 पे रहे, ठीक है, और 1 आए तो Q3 पे चला जाए. और एक और स्टेट ऐड कर लें तो फिर हो सकता है. ऐड कर लेते हैं एक और, हमारे पास Q4. क्यू बिल्कुल ऐड करते हैं जनाब, हमारे पास तो खुली चॉइसेस है. लें जी, Q4 ऐड कर लेते हैं जी. अब क्या करूं आगे, आप बताएं. जी, any idea what should we do now? तो ये कैसे चेक करेंगे कि वो एंड पे ही 2 0 हैं? बाकी पता नहीं, आप बताएं. नो आइडिया सर. सर Q1 पे 1 से आना चाहिए.
सेल्फ पाथ जब 1 आए तब Q1 पे रहे। जब 1 आए तो Q1 पे रहे। जी, 0 आए तो Q2 पे चले जाए। ठीक है, लेट्स ट्राई दैट। वन आए तो Q1 पे रहे। ओके, 0 आए तो Q2 पे चले जाए। 0 आए तो Q2 पे जाएगा, तो फिर 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगी ना। जी, 1 0 ठीक। 0 एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसको Q3 पे ले जाते Q3 पे ले जाएं अगर 0 आए तो। ठीक है, हैं। जी, फिर यहाँ से ये 0 पे Q2 पे ले जाए। अगर फिर 0 आए जीरो आ तो जाए फिर, अगर फिर Q, 0 आए तो Q2 पे ले जाए। Q2 पे ले जाए। और अगर ये 0 के बाद 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो यहीं पे रहे, Q2 पे रहे। 0 Q3 के पे। बाद 1 आ जाए, Q2 पे हाँ, रहे। Q3 पे अगर 1 आ जाए। Q3 पे 1 आ जाए हम्म, तो भी यहीं पे रहे, आगे ना जाए। वापस आ आ, जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए उसको। लेकिन फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगी ना, 0 1 1 1 0, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। जी, नहीं होनी चाहिए, क्या करें। चलें आप कुछ और ट्राई करें। नहीं नहीं नहीं, कोशिश करें, वेरी क्लोज। जी सर। अगर 1 आ जाए तो उसको यहाँ पे ना ले जाएं। जी जी, वापस अगर Q3 पे 1 आ जाए तो वापस Q1 पे आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक, अब यहाँ कोई से सूरत फिर हाल। जी, अगर हम इसको देखें 0 पे Q2 फिर 1 तो वापस 3 था 1 फिर। हाँ जी, ये नहीं होगा, Q3 पे रहेगा। ठीक है, ये जो लास्ट आपने इनपुट लिखी है ये एक्सेप्ट नहीं होगी इस तरह। ठीक है, अब Q2 पे आते हैं। सर अगर इसमें जो हमने दूसरी स्ट्रिंग लिखी थी वो सेट नहीं ना होगी, ये 0 1 0 0 वाली। ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रही, सो वी हैव टू डू समथिंग ऑन Q2। मेरा ख्याल है Q4 इज नॉट रिक्वायर्ड, आई गेस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स सी। अगर Q2 पे चलें, देखें हर स्टेट पे आपने देखना है कि अल्फाबेट में से हर एलिमेंट आता है तो क्या होता है। सो Q3 पे आपने देखा 0 आना तो क्या होना है, 1 आना तो क्या होना है। Q1 पे आपने देखा 0 आएगा तो क्या होगा, 1 आएगा तो क्या होगा। अब आप Q2 पे देखेंगे, अगर 0 आ जाए तो क्या होगा और 1 आएगा तो क्या होगा। Q2 पे 0 आए तो वापस इसी पे ही आ जाए, सेल्फ। 0 आए तो वापस इसी पे आ जाए। अगर 1 आए तो 1 आए तो Q1 पे। 1 आए तो Q3 ये, पे भी जा सकते। 1 आए तो Q1 पे जाएगा ये, क्योंकि 1 के बाद हमें फिर 2 जीरोस चाहिए। ठीक है सर। ओ, ये तो बन गया, बेहतरीन। यस सर। वाओ। सो सही है जी। तो सर इसका इन शॉर्ट अगर जैसे देखें तो अगर 1 आ जाए तो इनिशियल स्टेट पे आ जाना चाहिए, उससे 0 से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। यस यस, और 0 से आगे इसको कम से कम 2 जीरोस चाहिए टू रीच दी Q2। सर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर 1 ना हो 0 0 हो सिर्फ, तो ये वर्क कर जाएगा लेकिन नहीं करना चाहिए। ब्यूटीफुल। अब बताएं जी क्या करें, ये खूबसूरत बात की। आपका नाम क्या है जी, ये जिसने भी बात की है। अवैस। अवैस साहब कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, हालांकि इसको नहीं होना चाहिए। सर मेरे नज़दीक ये है कि एक और बनाया जाए नोड और उसमें 1 पास कराया जाए। अच्छा, और बिलफर्स एक और नोड बनाते हैं हम, लेट्स से Q4। Q4 बना दिया। 1 की सूरत में उस तरफ जाएं। जी सर। ठीक है, लेट्स सी। अगर 1 आए तो उधर जाएं, लेट्स से दैट्स आवर अटेम्प्ट। 1 आए तो इधर जाएं। बाय द वे ये क्या था, ये 1 था।
1 आए तो इधर जाएं, 0 आए तो इधर जाएं। ठीक है, अब Q4 पे आगे 1 और 0 है तो क्या करें? तो सर सारे वन उससे ब्रेक कर देने चाहिए हमें। Q4 पे 1 आए तो Q3 पे चले Q4 पे अगर 0 आए तो Q3 पे जाना चाहिए, और 1 Q4 आए पे तो अगर वापस से फिर 1 आए तो इधर ही रुका रहे, सही है। क्या ख्याल है? या Q1 पे ले जाएं, एक ही बात है, इधर ही रहने दो। चाहे इधर रोक लें चाहे Q1 पे ले जाएं। आई गेस दैट विल बी द सेम थिंग। 0 आए तो इधर आए, और अगर 1 आए तो लेट्स स्टॉप इट हियर। लेट्स से, हो सकता है अभी भी इसमें गलती हो। सर वो मसला तो हल नहीं, 000 वाला। अब 000 एक्सेप्ट हो जाएगा। ओए हाँ, वो तो मसला तो हल नहीं हुआ यार। Q1 से डायरेक्ट Q3 पे ना आए, पहले Q1 से Q4 जाए, अगर 1 आए तो Q3 पे आ जाए। सर कौन Q1, सा मसला हल नहीं हुआ? ये स्ट्रिंग तो अभी भी एक्सेप्ट हो जाएगी यार। सर ये Q1 से Q3 पे नहीं ना जाएगा, उसका लिंक नहीं होगा। खत्म कर दें? जी तो सर। अगर Q1 पे अगर 0 आएगा तो कहाँ जाएगा? अ, एक मिनट इसको देख लेते हैं, पहले मैं खत्म कर लूँ जरा। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गई है, मैंने तो आसान सी सोची थी, सर इतनी Q1 आसान। पे 0 आए तो Q3 पे चला जाएगा। Q1 पे अगर 0 आए तो Q3 पे चला जाएगा। फिर तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना यार। नहीं, ये सेल्फ पे ही रहना चाहिए, हाँ जी, ये इसी पे रहना चाहिए Q1 पे, अगर 0 भी आए तो। तो अच्छा 0 भी आए तो इसी पे रहना चाहिए। 1 आएगा तो ये आगे जाएगा। आप जब पहला 1 आएगा तो फिर ही आगे जाएगा, क्योंकि हम्म एक 1 चाहिए। हाँ, दैट मेक सेंस आई गेस। इफ देर इज अ 0, स्टे हियर। So when the first one arrives, then move on, and then you are good to go wherever you want to go. Yes? ठीक है सर, क्लियर। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है, अभी अभी भी मसला है। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। अब जरा देखिएगा क्या मसला है ना, ये जरा गौर से देखिएगा। लेट से एक 1 आया तो आप Q4 पे चले गए स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद 0 आया, उसके बाद 0 आया तो आप Q3 पे आ गए। उसके बाद 1 आया तो आप Q1 पे आ गए। उसके बाद 2 जीरोस आ गए। अब ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ना, लेकिन ये Q1 पे फंसा रहेगा। यार Q3 ये का तो फिर बड़ा, ये Q4 पे जाना चाहिए। ये तो फंस गए यार हम, ये तो सर ये मैंने तो कहा सर था ये वंस को आप Q4 की तरफ ब्रेक कर दें। हाँ जी। मिड का सवाल है सर, ये क्लास का सवाल तो नहीं, तो मिड में आने वन को वाला आप सवाल। Q4 की तरफ ब्रेक कर दें जो Q1 पे जा रहे हैं, 1 यार वाले क्लास पाथ। में सॉल्व नहीं हो रहा, मिड में हो जाएगा सर कुछ क्वेश्चन ना में कुछ चलो। है। सर ये फिर Q4 में जाएगा, ये 1 जो Q1 पे जा रहा है ना, ये Q4 में जाएगा फिर वापस। मेरा ख्याल है ये दोनों लिंक्स जो हैं ये Q4 पे जाएंगे, ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, ये दोनों Q4 पे जाएंगे। यस सर। देन आई गेस कि ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेट्स सी, बिकॉज लाइफ सीम्स नॉट दैट सिंपल। So let's make these two links towards Q4. In case of 1, go to Q4. In case of 1, go to Q4. Is that clear now? Or still there is a problem? थोड़ा सा देख लें, हो सकता है मसले हों इसमें अभी भी। जी, क्या कहते हैं? सर ये 10100 वाला तो हल हो जाएगा। कोई और ना खराब हो जाए। अभी भी हम ये, इससे पहले भी हम यही कर रहे थे कि एक स्ट्रिंग को पकड़ते थे, उसको सही कर लेते थे, और कोई और स्ट्रिंग खराब हो जाती थी। सोचें जरा, ये चलेगा या नहीं? सर 1-2 स्ट्रिंग्स दे दें, हम उस पर चला के देख लेते हैं।
सर वर्किंग तो ठीक आ गया है। नहीं, अगर एक दो स्ट्रिंग्स आपको दूं और उस पर आप चलाएं और वो ठीक आए तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सही चलेगा? प्रूफ कैसे करें? कोई चीज फॉर्मूला होना चाहिए। हैं? सर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर अगर लास्ट में डबल वन आ जाए तो ये उस सूरत में भी एक्सेप्ट हो रहा है। डबल वन आ जाए तो एक्सेप्ट नहीं होता ये। ठीक है सर, नहीं होता। डबल वन पे नहीं एक्सेप्ट होता। इसको प्रूव कैसे करेंगे ये सही चलेगा? एक तो तरीका ये कि स्ट्रिंग्स लेते रहे, लेकिन स्ट्रिंग्स तो इनफाइनाइट बना सकते हैं आप, छोटी बड़ी जितनी मर्जी बना, सब पे थोड़ी चेक करेंगे। सर कोई मेथड या फॉर्मूला होना चाहिए जो चेक करे। कोई आर्गुमेंट दें कि यार यस दिस विल वर्क। सर ये जो हमारी दोनों कंडीशंस हैं, जैसे एटलीस्ट वन वाली भी पूरी हो रही है और एंड विद जीरो वाली भी पूरी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा और एक्सेप्ट तभी होगा जब एंड पे जीरो होंगे। सर इनिशियल से लेकर फाइनल तक हमें पाथ में चाहिए, पाथ स्टार्ट 1 से हो और उसके साथ आगे 2 0 लगे हो, तो ऐसा हमारे पास बन रहा है, हर प्रॉब्लम में बन रहा है ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर हम इस तरह से देखें इसको, आप सारे लोग सही कह रहे हैं, अगर हम जस्ट आर्गुमेंट देने के लिए ये देखें, whenever we read from the input obviously or consume one, whenever we will, from wherever we will reach Q4. Is that true? दुनिया में इस पूरे FSM के अंदर वन हम जब भी रीड करेंगे वी विल लैंड इन Q4, जहां मर्जी से वन हम रीड करें वी विल लैंड इन Q4. इज दैट करेक्ट? यस सर। यस सर, करेक्ट। From Q4 a pair of zeros always lead us to accept state. Is that true? Yes, Yes, sir. So I guess that's more than enough, these two arguments. And if you see the picture, that's enough saying that this is correct. Yes? Yes, sir. हम Q4 को कभी भी बाईपास नहीं कर सकते। जब भी 1 आएगा हम Q4 पे जाएंगे और उसके बाद हमें कम से कम 2 zeros चाहिए होंगे, और अगर दोबारा कभी भी 1 आएगा हम फिर दोबारा उसी स्टेट में आ जाएंगे कि वी आर इन Q4 और अब हमें कम से कम 2 zeros चाहिए। Yes, sir. और स्टार्ट में, अगर बिल्कुल स्टार्ट में हम Q4 पे नहीं है तो हमें एक 1 चाहिए Q4 पे पहुंचने के लिए। सो एक्सेप्ट स्टेट, हमारी कोई भी एक्सेप्ट स्टेट जो है ना वो Q4 के अलावा नहीं हो सकती, यानी Q4 को एक दफा विजिट करना पड़ेगा लाजमी। Q4 must be visited for a string to be accepted. Q4 must be visited at least once. Yes sir, right. और Q4 जब विजिट हो जाती है उसके बाद आप वायलेट नहीं कर सकते। Make sense? Yes, sir. Great. So yeah. अच्छा, इस पिक्चर से, अगर मैं इस पिक्चर से आपको कहूं कि ये ट्रांजिशन फंक्शन लिखें तो लिख लेंगे? कोई मुश्किल तो नहीं है, ये एरोज लगे हुए हैं और ये सब। Yes sir. यस सर। नॉट अ बिग डील है ना?
Yes, sir. Okay, great. So, सर yes. सर अगर हम कोई एक्स्ट्रा Q4 या Q5 लेते हैं तो उसका अंदाजा कैसे होगा कि एक्स्ट्रा इसकी जरूरत नहीं है इस रिमूव बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, ये जो लूप है ना, इस लूप को बनाने के लिए आप एक से ज्यादा स्टेट्स भी यूज कर सकते हैं. ये Q4 है ना, ये लूप है. फॉर एग्जांपल मैं ये लूप यहां से खत्म करता हूं, मैं Q5 बना लेता हूं, और जब 1 आए तो इधर जाओ, और जब फिर 1 आए तो इधर आ जाओ. समझ आ रही? Yes, sir. इस तरह की ना, इस तरह की यानी चीजें बनाई जा सकती हैं, आप स्टेट्स बढ़ा सकते हैं. फिलहाल हमारा फोकस जो है ना यहाँ पे ये है नहीं कि आप एक ऐसी एफएसएम बनाएं जिसकी नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम हो, या वो ऑप्टिमल हो विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन एंड नंबर ऑफ स्टेट्स. लेटर ऑन इन दिस कोर्स इंशाल्लाह वी विल सी कि अगर आप एक फाइनाइट स्टेट मशीन बना लेते हैं जिसकी नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा भी हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स कम करके उसको कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, तो वी विल सी एन एल्गोरिथम हाउ टू मेक इट कॉम्पैक्ट. लेकिन द गोल हियर इज नॉट टू save the number of states. I mean, do not use the very small set of states. I mean, if you should solve your problem even if it requires 1,000 of states. Later on, once your problem is solved, once you come up with one finite state machine for your problem, you can minimize it. There is an algorithm to minimize the number of states or to come up with an optimal one. But first of all, you have to come up with a one finite state machine that may not be optimal, but it is correct. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One more thing about this one tricky kind of thing. Not tricky, definitional, an empty string. Empty string denoted by epsilon. This is a string with no character at all. So this is also a string over an alphabet. Whatever alphabet is there, you can have an empty string. This is just definitional, that you have a string with no character, like null. Okay, that's empty string. Although null itself is a character, but empty string, none. Make sense? Yes, sir. Okay. Now, let me design a finite state machine that accepts empty string, or that accepts empty string also, or it accepts the strings that has even number of zeros. So if there is a zero, the number of zeros must be even. So this machine accepts empty string. This machine accepts any string with any number of ones, but if there is a zero, then the number of zeros are even. Make sense? Why it accepts empty string? I mean, if you do nothing, you are in an accept state. That means if you do not consume any character, you do not read any character, which means you, let's say, hypothetically thinking, you read an empty string, then you are in accept state. So empty string is also part of our set of strings. Okay? Yes, sir. And सर अगर
कोई करेक्टर पास नहीं होगा तो दोबारा Q1 पे यानी कि ये फाइनल स्टेट में चली जाएगी। आप इनिशियली फाइनल स्टेट में, which means you are accepting empty string. ठीक। That's the only way to accept empty string. आपकी इनिशियल स्टेट ही फाइनल हो। अगर आपकी इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं है तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर आपको कम से कम एक कैरेक्टर तो कंज्यूम करना पड़ेगा। यस सर। ट्रांजिशन के लिए। अच्छा, हर फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन जिन फाइनाइट स्टेट मशीन से ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करें, उनके लिए जो स्टार्ट स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट होती है। ओके? Yes, sir. ओके, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लैंग्वेज के बारे में। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ लैंग्वेज? Set of strings. Yes, it's a set of strings. So basically any set of strings is a language, any set of strings. You can come up with very different kind of languages. I mean, over the same alphabet. For example, over the alphabet 0 and 1, you can come up with a language like the language that has at least one 1, and it ends with a pair of at least 2 zeros. It ends with at least 2 zeros. जो हमने पिछली एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं, so we just saw this. So ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट के लिहाज से जितनी भी स्ट्रिंग्स वैलिड आती हैं, यानी वो तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें कम से कम एक 1 है और वो कम से कम 2 zeros पे एंड होती हैं, इन सारी स्ट्रिंग्स को अगर मैं एक सेट में लिख लूं तो दैट्स अ लैंग्वेज। इसी तरह एक और खास किस्म के स्ट्रक्चर की अगर स्ट्रिंग्स हों, उनको मैं अगर एक सेट में लिख लूं, दैट मे बी डिफाइंड एज अ डिफरेंट लैंग्वेज। बट लैंग्वेज अगेन इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, बट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू मे डिफाइन डिफरेंट लैंग्वेजेस कि ये लैंग्वेज जो है ना इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये लैंग्वेज जो है ना इसकी ये प्रॉपर्टी, एंड सो ऑन। यस Yes, sir. सर यस ये स्ट्रिंग के लिए एटलीस्ट 2 अल्फाबेट होना जरूरी है, सिंगल नहीं है, स्ट्रिंग हो सकता है? सिंगल भी स्ट्रिंग है, डेफिनेशन जरूरी है इसके लिए? सिंगल भी स्ट्रिंग कहलाएगी और बगैर किसी अल्फाबेट के भी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, मतलब लैंग्वेज में अल्फाबेट भी आ सकता है, सिंगल अल्फाबेट? सिंगल भी आ सकते हैं, वो स्ट्रिंग होगी। यानी डोंट कंफ्यूज दिस विद करेक्टर एंड करेक्टर अरे, डोंट कंफ्यूज इट। स्ट्रिंग मींस no character, one character, or any number of characters. Okay? Okay. Yes? Okay, great. So let me define something called regular language. Regular language. A language is called regular if there exists a finite state machine that accepts all its strings and rejects all the strings outside the language. So the definition of regular language is, again, a language is a set of strings, but if you come up with a set of strings and you claim that this set of strings is a regular language, any set of string is a language. So if you have a language and you claim that it's a regular language, the only way to test that claim is if there, well, this is not the only way, there are a couple of other ways as well, but right now we have only way to
to prove that if that language, because language is a set of strings, if all the strings of that language is accepted by some finite state machine, there exists a machine, a single machine, or maybe maybe it contains 1,000 states or 2 states or even 1 state, whatever. So so a language will be called regular if there exists a finite state machine that accepts all its strings. None of its strings is rejected, but any string that is not in that language will be rejected. If such a finite state machine exists, then your language is called regular. You may come up with a set of strings, you may come up with a language for which it is impossible to design a finite state machine that accepts all its strings and rejects all the other strings that are not there. In those cases, those languages are called not regular. And we will see the examples of not regular, non-regular languages as well. Okay? Yes, sir. एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे लिख दूं. टर्मिनोलॉजी जो नॉर्मली यूज होती है, एक्सेप्ट्स का कीवर्ड यूज होता है स्ट्रिंग के लिए. अ फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग या रिजेक्ट्स अ स्ट्रिंग. ये यूज होते हैं स्ट्रिंग के लिए, कीवर्ड एक्सेप्ट या रिजेक्ट. ठीक है. जो कीवर्ड होता है recognize, ये यूज होता है लैंग्वेज के लिए. ठीक है. मिसाल के तौर पे ये जरा गौर से देखिएगा. FSM accepts W1 and W2 because W1 and W2 they are strings. अब अगर मैं कहूंगा FSM accepts a language, तो ये इसमें इतना मसला नजर तो नहीं आ रहा है. एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज से मुराद यही होगी कि उस लैंग्वेज की तमाम स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करेगा और उस लैंग्वेज के बाहर कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन जब लैंग्वेज की बात आती है यानी तो तब जो कीवर्ड यूज होता है वो रिकॉग्नाइज होता है. So FSM recognizes a language. That means the FSM accepts all the strings of a language. So जब कीवर्ड accept यूज होगा it refer to as a string. Recognize यूज होगा तो it refers to as a language. ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किताब पढ़ें तो कंफ्यूज ना होंगे. कभी एक्सेप्ट कहता है, कभी ये recognize कहता है. Recognize वो लैंग्वेज के लिए कहते हैं, accept वो स्ट्रिंग के लिए कहते हैं. क्लियर है? Yes, sir. सो अब अगर recognize और accept का डिफरेंस आपको समझ आ गया है तो मैं रेगुलर लैंग्वेज को दोबारा से डिफाइन करता हूं. Regular language, a language L is called regular if there exists a finite state machine that recognizes L. और याद रखें जब हम कहते हैं कि FSM recognizes L तो इसका मुराद है कि L के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो FSM एक्सेप्ट करेगा और वो तमाम स्ट्रिंग्स जो L में नहीं हैं वो FSM रिजेक्ट कर देगा. ठीक है. मेक सेंस?
तो Yes. ऐसी लैंग्वेज को रेगुलर कहा जाता है। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं वो सारी रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके Yes, sir. Okay. ओके, क्वेश्चन। The set of all possible bit strings is regular or not? अब यहां पे सेट को रेगुलर नहीं कहते, लैंग्वेज को कहते हैं, इसलिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स, उसको एक लैंग्वेज हम कहेंगे। Set of all possible bit strings, that's a language. So the language that is defined by these bit strings is regular or not? That's my question. अगर कोई एक्सेप्ट करता होगा इस सबको तो वो रेगुलर जी दुनिया जहां की कोई भी बिट स्ट्रिंग लेके आए एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। सर, अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो रेगुलर हो जाएगी। और जाहिर है सारी बिट स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी है तो रिजेक्ट कोई भी नहीं होनी। जी सर। तो क्या ये लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बिट स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज, क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? कोई ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसको रिकॉग्नाइज कर ले? सर, कोई ऐसी मशीन जिस पे अगर 0 भी है तो भी फाइनल स्टेट में जाए, अगर 1 आए तो भी फाइनल स्टेट में, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। सो ये सबको पता है ना, ये जो डबल सर्कल है दैट मींस फाइनल स्टेट। यस सर। 0 आए या 1 आए, दो डिफरेंट एजेस बनाने की बजाय आप कॉमा से 0 आए या 1 आए तो Q2 पे चले जाओ, फिर 0 आए या 1 आए तो इसी पे रहो। यस सर। सर ये नहीं ठीक। ये नहीं ठीक? सर अगर एम्प्टी वो आ जाती है सेट तो फिर ये हाँ, अब आपको देखना पड़ेगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स में आप एम्प्टी को इंक्लूड करना समझते हैं या नहीं। यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स में चूंकि आपने बिट का वर्ड यूज कर दिया ना, तो जब बिट की बात आ जाएगी तो क्या एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा या नहीं आएगा? सो वैसे बिट हमें लिखना नहीं चाहिए, जो भी अल्फाबेट है उसके लिहाज से चलना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, अगर आप समझते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स द एम्प्टी स्ट्रिंग एज वेल, व्हिच इट डज, then the finite state machine looks like the following. यस सर। Okay? यस सर। Okay, great. So because for this particular language there exists a finite state machine, so this particular language is regular, not a big deal. Clear? यस सर, क्लियर। Yes. Okay, that was question 1. Let me go to another question. A language L is defined as a set of all the strings having even number of ones. Is L, let me call this as LA, is LA regular?
जी। आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। यस सर। इज एल रेगुलर? यस सर, रेगुलर होगी। यस सर रेगुलर है। साबित करें, मुझे दें, एफएसएम दें। इवन नंबर ऑफ वंस। वन से Q2 की तरफ जाएगा और वन की सूरत में जाएगा, वन की सूरत में वापस। So let's start with typing, let's say 2 states. Yes, sir. No. And empty string obviously is included. अगर आप empty string देखें तो उसमें number of ones जो हैं वो zeros हैं, hence it is even number of ones. So empty string is included. ठीक है? अगर 0 आए तो इधर ही रहो, अगर 1 आए तो इधर आ जाओ। जीरो पे Q2 पे ही रहेगा और अगर Q2 पे 1 आएगा तो फिर Q1 पे। दो सूरतें हैं, एक तो ये कि अब 1 का लूप Q2 पे लगा दें, दूसरा ये 1 आए तब भी इधर चले जाएं, इधर वे। यानी 0 आए तो लूप आप Q2 पे लगा दें, या 0 आए तो Q1 पे लगा चले जाएं, Q1 पे लूप लगा तो हुआ है। दोनों सूरतों में ये दुरुस्त है। ओके? यस सर। सर ये 0 पे Q1 पे नहीं ना जाना चाहिए। जीरो पे जाएगा तो अगर 1 0 पे होगा तो सर वो अगर स्ट्रिंग 1 है ना तो फिर वो 1 0 है, अगर फर्ज कर लेते हैं तो वो Q2 पे आएगा और फिर वापस वो उधर आ जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको दूसरी भी बना देता हूँ जो आप समझ रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है। पहले वाली है, जब 0 1 होगा पहले भाई आपका माइक बहुत ज्यादा वो शोर कर रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। आप सवाल करते हैं वो आवाज क्लियर नहीं आती। सर पहले वाले में ये मसला होगा ना कि 1 0 अगर स्ट्रिंग हो तो फिर उस पे वर्क नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो करना भी नहीं चाहिए। सर नहीं इवन नंबर ऑफ वन सर कर रहे हैं वो तो। पे भी काम करेगा। ओ 1 0 पे ये वर्क कर जाएगा पहले वाला। यस सर। जी सर ये कहना चाह रहा था। ओ अच्छा, तो ये खराब है पहले वाला, सही नहीं है। यस सर। जी सर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं जस्ट फॉर आर्ट, अगर मैं इसको, हाँ इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं, इसको करना पड़ेगा। अगर जीरोस हैं तो इधर रहो और 1 है तो इधर जाओ, 0 है तो इधर जाओ, 1 है तो इधर जाओ, और फिर 0 है तो वहीं पे रहो। हाँ, क्योंकि अभी इवन तो हुए ही नहीं। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड पे हमने ड्रॉ किया है ये सही है, ये वाली गलत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो अब दो मतलब और लिखने का फायदा नहीं है, अब सेम चीज होगी। ठीक है, यस सर। so let me just, so this is the string. Okay, great. Question 3. A language
LB is defined as a set of all the strings having odd number of zeros. Is LB regular? Yes sir, regular. Okay, then prove it. ऊपरवाले को रिवर्स कर दिया जाए, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो पॉसिबल है? वो इवन के लिए चलेगा, हम ऑड कह रहे हैं इस वक्त। ओह सॉरी, चेक इट। शायद एक आध नीचे वाला जो 1 है उसकी जगह 0 कर दें। कहाँ पे? जो Q2 से वापस Q1 की तरफ जा रहा है उसे अगर 0 कर दें। सर Q2 फाइनल बन जाएगी ना? Q2 को फाइनल स्टेज में आ दे। Let's say Q2 is our final state. क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो Q1 तो फाइनल स्टेट हो भी नहीं सकती ना, एम्प्टी स्ट्रिंग तो एक्सेप्टेड होगी नहीं, ठीक है? Yes. Q1, अब बताएं जी। सर अगर 0 हो तो उसे Q2 पे आ जाना चाहिए। 0 हो तो Q2 पे आ जाए, 1 हो तो Q1 पे वापस आ जाए। नहीं 1 हो तब भी एक्सेप्ट हो जाए। नहीं 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 1 हो तो इधर ही रहे। यस सर, अगर 1 हो तो सर और नंबर ऑफ मैंने बना लिया। बना लिया आपने? जी 0 हो तो फिर वापस आ जाए। 0 पे वापस आ। वापस आ, और क्या हो 1 पे इधर ही है जी। वो तो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट में 0 1 बाद में कितना आएगा? और नहीं, फाइनल स्टेट में 0 1 नहीं, आपने स्ट्रिंग तो रीड करते रहना ना। स्ट्रिंग पता नहीं कितनी लंबी है, स्ट्रिंग कभी आपको फाइनल स्टेट में ले जाएगी। अगर स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुई तो आपने तो रीड करते जाना है। समझ आ रही है? यस एग्जैक्ट बन गया। जब तक स्ट्रिंग फिनिश नहीं होती आपने स्टेट स्विचिंग करते रहना है। जब स्ट्रिंग फिनिश होगी तब आप किस स्टेट में हैं, ठीक है, पता चलेगा कि स्ट्रिंग रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। यस सर। Okay, question 4, and this is the last question of today's lecture. I guess it should be interesting. Question 4. A language L is the union of LA and LB, which means L is LA, LA is a set, LB is a set, so union is straightforward in sets. So L is union of both. Question: is L regular? यस सर, रेगुलर। Okay, you have to answer this question in our next class. अगर L regular है तो come up with a finite state machine for it. ओके सर। And LB क्या चीज है? ये है LB। सही है। और अगर आप ये आंसर कर लें तो फिर ये भी करना है आपने। Let's say this is L1. L2 is defined as LA intersection LB. Is L2 regular? So let's meet on next week. Okay? यस। ओके सर। सर आपसे क्वेश्चन था। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। सर ये जो स्लाइड्स आप बनाते हैं तो ये हमें मिल सकती हैं जो आप राइट करते हैं स्लाइड्स पे?
हाँ जी, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको, एनोटेटेड स्लाइड्स, ऐसे लिखे हुए सफ़े मिल जाएंगे आपको पीपीटी में। ओके सर, थैंक यू। तो मैं हाँ जी इंशाल्लाह ये दे दिया करूंगा आपको, ठीक है। जो पहले लेक्चर की स्लाइड्स हैं वो मैं सेव करना भूल गया था, वो वीडियो में ही है, यानी जो वीडियो मैंने आपको शेयर की है उसी में। जो अभी मैं सेव कर लेता हूँ तो ये पीपीटी में भी मेरे पास सेव रहेंगी ना, वीडियो में तो होंगी लेकिन एज अ पीपीटी भी आपके पास आएंगी। ओके सर, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दीजिएगा। बेटे ये रिकॉर्डिंग जो मीट की रिकॉर्डिंग होती है ना, ये कोई आधा पौना घंटा लगता है इसको यहाँ पे वो होने के लिए, यानी वो मेरे पास पहुंचने के लिए ना, इसको वो प्रोसेस करते हैं और उसके बाद सेव होने के लिए टाइम लगता है। वो जैसे मेरे पास आएगी, मैं मीट का लिंक तो वैसे ही आपके साथ शेयर हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे फिर अपलोड करते हुए फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो ठीक है सर, जैसे थैंक यू। होगा मैं आपको और लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, बेहतर है कि जो सीआर साहब हैं आपके या साहिबा जो भी हैं, बेहतर है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसमें ये सारे लोग ऐड हो जाएं, हमारा एक थ्योरी ऑफ कंपटीशन का एक ग्रुप बना लें, ताकि कोई इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह हमने आपस में करनी हो तो वो हम कर लें, उसमें मुझे भी ऐड कर लें। अगर फीमेल्स को खुसूसन नंबर देने में कोई इशू नहीं है तो वो ऐड कर लें, अदरवाइज हम क्लासरूम्स की तरफ भी जा सकते हैं। सो दैट्स माई नंबर, प्लीज मेक WhatsApp group and add me there, your CR, whoever is a CR, and please join this group. If you do not have issue of exposing your phone number to somebody else, then please join this group. If you have issues, then we can make a email group. और इसमें हम आपस में कोई आपको इंस्टेंट क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पोस्ट करें, आपस में बाकी लोग उसमें आंसर करें या मैं उसमें आंसर कर दूंगा, वी कैन हैव अ क्वेश्चन। और जैसे YouTube पे मैं अपलोड करूंगा, आई कैन गिव यू नोटिफिकेशन हियर और वाया ईमेल। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये नंबर मेरे पास आ गया आपका, तो काइंडली मुझे पर्सनली इनबॉक्स ना कीजिएगा, आप में से कोई भी जो भी आपका काम है मुझे ग्रुप पे बताएं। अगर आपका इंडिविजुअल पर्सनल कोई काम है तो वो CR मुझे बताए कि फलां स्टूडेंट को आपसे कुछ काम है, तो फिर मैं उससे रब्ता करूंगा। डू नॉट डू पर्सनल इनबॉक्सेस। ओके ओके सर, चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।